Anyone? Is it audible? Yes, ma'am. Sorry, I think I haven't sent you the, in your group, I haven't sent you the link. That's why less people are joining. Okay. Chalo. Are you, chalo, we are connected. Let us से check कितने लोगों ने join किया. Okay. Okay, by the time now, let us take some doubts. तो ये एक कहीं के doubts हैं. There is one question. Calculate the number. ये तो शिमोय easy है. इसमें क्यों problem आया तुमको? चलो देखो. Calculate. चलो next देखते हैं. So that is calculate the number of. चलो बाकी लोग भी try करो इसको. Calculate the number of circular path or orbit. Calculate the number of circular path or orbit made by the electron in the first Bohr orbit. चलो बताओ कैसे करोगे. Made by electron in the first Bohr orbit. Ma'am, I only wanted to know question 17. तुमने मार्क किया हुआ था तो तुमने स्पेसिफाई भी नहीं किया था ना क्वेश्चन कौन सा चाहिए. मैंने नीचे लिखा था question 17. अच्छा. Calculate number of possible spectral lines. चलो everyone try this. Number of spectral lines possible. Spectral lines possible which may be emitted in Balmer and bracket series. Okay, bracket series if hydrogen returns from, if electron, sorry, in hydrogen atom, if electron returns from 8th excited level to ground level. Anyone wants to try this question? How many spectral lines will be there? How many spectral lines? What do you mean by 8th excited level? What will be the meaning of 8th excited level? N2 is equal to 9. Yes, so this will be like this: 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ठीक है. And what is it? Balmer series का मतलब लाइन किधर जंप कर किधर आनी चाहिए? Balmer series का मतलब क्या होता है? लाइन किधर आनी चाहिए? 2 पे लैंड होनी चाहिए. N1 equals 2. Yes, N1 की जो वैल्यू है वो 2 होनी चाहिए. So see, check from here how many Balmer lines are coming. Check from here how many Balmer lines will be there. It will be like 3 converting to 2, 4 coming to 2, 5 coming to 2, 6 coming to 2, 7 coming to 2, 8 coming to 2 and 9 coming to 2. कितनी हो गई? Calculate how many set Balmer lines beta? 7. Yes. Then similarly bracket lines का मतलब क्या हो जाएगा? 3, 4, 5, 6, 8, 9. हाँ बोलो. ब्रैकेट लाइंस का मतलब क्या हो जाएगा? बोलो. अरे am I audible or not audible? Yes, ma'am, you're audible. Okay, so tell me bracket lines मतलब किस पे लैंडिंग होनी चाहिए? Ma'am, N equal to 3. N is equal to 4 पे होनी चाहिए. तो देखो कितनी लाइंस होगी? 3, 4 and 5. ठीक है.
तो अब आंसर सॉर्टेड हो गया. Is your answer sorted now? Yes, ma'am. Okay. Anyone else having any other kind of doubt? Ma'am, what are rare earth metals? What? Rare earth metals. Radioactive metals, because they are rarely found in the earth's crust. We manufacture them in the lab. Ma'am, so which is the first one? F block elements. Yes, F block. The F block element, I suppose. Ma'am, which is the first rare earth metal? Which one? Ma'am, first rare earth metal. First, what? You're not audible. Like First rare earth metal. first rare. Earth metal. The So rare. first rare earth metal. You tell me. मतलब Lanthanum. it is something like जो मतलब I'm क्या following बोलते हैं? lanthanum lying in F block. Cerium, I think. एक्चुअली क्वेश्चन का सेंस क्या है उस पर भी डिपेंड करता है. वो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बोल रहे हैं या फिर फर्स्ट रेयर अर्थ मेटल डिस्कवर्ड के हिसाब से बोल रहे हैं. This question was there in the exam. Ma'am, periodic Achha. table. Ma'am, के Then just it a will be question. lanthanum because we are talking about periodic table. Ma'am, आंसर गलत दिया हुआ था. सीरियम लिखा था आंसर. Yes, ma'am. It was given as cerium. I'll check it out. Ma'am, there were 4 or 5 answers which were actually wrong. Okay, I'll check it out. Anything else? मैम लेकिन लैंथेनॉइड सीरीज में तो लैंथेनम इस केवल सीरियम से स्टार्टिंग होती है ना. Ma'am, but technically. हम लैंथेनॉइड सीरीज मैम Ma'am, वो होते हैं ना जो सीरियम मैम lanthanum तो लैंथेनम को हमारा फॉलो serial कर. हाँ, सही बोल रहा है. सीरियम से ही स्टार्ट होती है. Yes, ma'am. पूरा तो मैम एलिमेंट होता है lanthanum वो सीरियम से ही स्टार्ट होता है. मैम सो लैंथेनम मैम लैंथेनॉइड एंड लैंथेनम फैमिली and होती है actinium है. लेकिन पहला एलिमेंट जो होता है वो सीरियम होता है. सही कह रहे हैं. मैम यस. हम जो लैंथेनियम और एक्टिनियम है मैम उनको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं गिनेंगे ना, डी ब्लॉक में नहीं, वो गिनेंगे. डी में काउंट होते हैं. वो थर्ड पीरियड का वो होते हैं तो इसलिए वो डी में काउंट होते हैं. उसके बाद वाले एफ में काउंट होते हैं. ओके ना? और कोई डाउट? Ma'am, तो answer would be cerium. यस, इट विल बी सीरियम. Ma'am, and ये elements rutherfordium, ma'am, dubnium, ये सब होते हैं rare earth metals. वो क्या होते हैं? Ma'am, rare earth metals होते हैं ये. हाँ, ऑब्वियसली. Ma'am, Ma'am, तो जरूरी जो नहीं है तुमको F block मैंने कोई हो. एटॉमिक नंबर का रेंज बताया है उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट होंगे ना. ठीक है. Anything else? Anything else? Shall we proceed further then? Yes, ma'am. Okay, तो मुझे हमें क्वेश्चन था मैम टेस्ट में कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैम वाज गिवन बाय मेंडलीव एंड मैम there were other options also. there is a with, correction in that. Moseley That is also. like Moseley will be the answer. There is a correction in that. Ma'am, Bohr made the table. Moseley gave the law. मैम Moseley gave the law, not the So modern who gave the periodic table. table? तुम्हारे हिसाब से कौन होना Ma'am, चाहिए? Mendeleev's Bohr. periodic table was given by Mendeleev, but like according to the option, the long form of the periodic table, like it was What developed was by the a team question? of I can't scientists. recall the question actually. Can you give me the proper the question? exact question was, ma'am, the long form of the periodic table was discovered by, ma'am, we And the had options are? options I don't exactly remember, ma'am, but ma'am, the answer should have been Mendeleev, but the answer was given as Niels Bohr. Yes, ma'am. Because Mendeleev, he was the one who gave the periodic table. long form of अरे periodic बाबा table. एक एक करके Ma'am, it was not long form of periodic table. Which, How then what it do you can be want to Mendeleev? say? What do you want to say? Ma'am, it was asked to who has discovered long form of periodic table. Yes. So that, Ma'am, then how can it be Mendeleev? It should be Niels Bohr only. ma'am, what did Niels? Ma'am, Bohr but did Bohr not- didn't. Bohr did not do anything in the periodic table. Yes, You ma'am. can't What say did he have to It's do? going to be Bohr. Okay, Ma'am, I Bohr thought- ने कुछ
पीरियोडिक टेबल के ऊपर नहीं किया था, बट क्योंकि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो पूरी तरीके से मूजले के लॉ पे ही बेस्ड है, तो इसलिए कुछ बुक्स में ऐसा भी बोला जाता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना वो मूजले ने ही दिया था, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो पूरा चेंज मैम आया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मूजले ने दिया था, ये कह सकते हाँ, हैं, तो बट मैम पीरियोडिक टेबल टेबल तो तो उसी पे ही साइंटिस्ट बेस्ड है ना बेटा, पीरियोडिक टेबल तो उसी पे ही बेस्ड है ना। ओके, पीरियोडिक टेबल तो मूजले इसके लॉ में ही बेस्ड है, तो बेस्ट आंसर आई थिंक विल बी मूजले ओनली। मैम बट मेंडलीव को ऑप्शन भी दिया था, पीरियोडिक तो टेबल मेंडलीफ ने मेंडलीव तो ने मैम मॉडर्न नहीं डायरेक्टली दिया है ना, मेंडलीफ ने मॉडर्न नहीं दिया है ना। ओके, मेंडलीफ का मॉडर्न से कोई वो नहीं है। मैम तो मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ दिया, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पीरियोडिक का टेबल। मॉडर्न वाला कहाँ दिया है, नया वाला कहाँ दिया है, वो तो पुराना था ना, दिस इज बीइंग डिस्कार्डेड। मैम सो मोस्टली ही वाज द वन हु गिव द मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जब भी मेंशन करा जाता है बुक्स में तो उसको बोला जाता है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, उसको मॉडर्न नहीं बोलते हैं। और जब हमें जो ये मूजले के ऊपर बेस्ड है उसको ही हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और वी कॉल इट एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, सो नेमिंग में जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ, जो तुम्हें नेमिंग में कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ। Yes, ma'am. वैसे लाइक who was the one who like made the modern periodic table, अगर मूजले ऑप्शन में ना दिया हो तो फिर ऑप्शन ही नहीं हो तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, मूजले नहीं दिया होगा तो कौन किसको करेंगे हम, किसको क्रेडिट दें कि जिसने एटॉमिक नंबर्स, मतलब जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर्स पे बेस्ड है, वो किसने दिया था। Ma'am, but frankly speaking, Mendeleev was the one who formulated the most of the things. Mostly had just he formulated but that was not to the point ना, we already told it, तो उसको मॉडर्न थोड़ी and ना ma'am बोलते हैं। just to say one thing, that ma'am the modern periodic table was basically like the copy or like reproduction of the Mendeleev's periodic table. Okay, let It is us like confirm this thing clearly from NCERT book. See, because there are two things. Many books take जो उसका जो एक और फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आया था जिसमें AB क्लासिफिकेशन आया था, कुछ बुक्स उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिडर करती हैं, ठीक है। तो ये okay. चीज तुमको थोड़ा सा NCERT बुक से देखना पड़ेगा। फाइन, जिसमें वो क्लासिफिकेशन आई थी A एंड B वाला, मेटल्स को बी में कर दिया था और नॉन मेटल्स को ए वाला क्लासिफिकेशन आया था, उसको कुछ लोग बुक्स जो होती है मॉडर्न बोलती हैं, और जो कुछ बुक्स है ना वो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसी को मॉडर्न बोलते हैं। तो तुम्हें अपनी NCERT, बिकॉज जो हमारा बेसिस है वो NCERT बुक ही है, तो अब क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो नाउ रीड दिस जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल की कैसे वो जनरेट हुआ था, वो एक बारी रीड करो और मुझे चेक करके बताना नेक्स्ट क्लास में कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या लिखा हुआ है। सम बुक्स टेक दिस, जो कि मेंडलीफ ने ही किया था, उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, बट अगर तुम स्टैंडर्ड बुक्स पे जाते हो तो स्टैंडर्ड बुक्स जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है जिसमें हम SPDF ले रहे हैं उसको मॉडर्न बोलते हैं, ठीक है, उसको लॉन्ग फॉर्म को ही मॉडर्न बोलते हैं। तो अब क्योंकि हमारा बेसिस जो है वो NCERT है तो इसलिए अब तुम लोगों को बुक में एक बार रीडिंग मारो एंड देन चेक इट आउट किसको वो कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसको कंसिडर कर रहे हैं जो AB क्लासिफिकेशन वाला है, देन ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी मेंडलीफ। मैम NCERT में एक लाइन लिखी थी कि IUPAC ने जो AB वाला वो होता है हम उसको नंबर्स के उसमें करवाया है। हाँ तो They हाँ have वो तो वही तो discarded it हमारा and लॉन्ग written in the फॉर्म ऑफ form of पीरियोडिक numbers. टेबल है। And मैम NCERT में कॉल लाइन लिखी Mendeleev's periodic table was therefore accordingly modified. मॉडिफाइड so- ना, यस, तो मॉडिफाइड मैम वन तो इज ओनली मॉडर्न फॉर, पीरियोडिक टेबल में मैम उसी की टेबल के फॉर्मेट में हमने नए एलिमेंट्स रखे। अच्छा लेट मी रीड इट अगेन बिकॉज उसी पे कंफ्यूजन क्लियर हो पाएगा। लेट मी रीड दैट पार्ट अगेन एंड देन आई विल हाईलाइट एंड टेल यू कि कौन सा वाला सही होगा, क्योंकि दोनों ही कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, दोनों ही में लिखा गया है, कुछ बुक्स इसको मॉडर्न बोलती हैं और कुछ लॉन्ग फॉर्म को मॉडर्न बोलती हैं। तो अब हम लोग इस पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन को क्रब करने के लिए we just have to read it NCERT, you people also read it and then I'll tell you कि किस पैराग्राफ से क्या कंफ्यूजन निकल पाएगा। Is it fine now? Ma'am, there was another question given in the periodic table. The element with atomic number 16 will be placed in the group.
आई थिंक वो गलत हो गया था शायद, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर 16 ग्रुप 16 में ही आएगा। यस Yes, मैम, ma'am. 6 दिया था ठीक है, आंसर। वो आंसर शायद गलत दिया हुआ था। मैम ऐसे एक और क्वेश्चन था, द 10th एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल रिजेंबल्स विद द विद Yeah. व्हाट? मैम वो पूरा क्वेश्चन नहीं था आई थिंक, तो उसमें शायद यस ग्रुप मैम, वो नंबर तो ही आंसर पूछा कुछ भी था हो सकता है ना मैम। मैम मैम, like, लीनियर भी हो न्यूमेरिकल में सकता था है, क्या? आर्गन भी हो सकता है। न्यूमेरिकल मैम। में था क्या? यस मैम। यस मैम, इनर्ट गैस, नोबल गैस। Ma'am, maybe there was some तो बट discrepancy. आंसर, एक मिनट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर अपने को किससे किसके बीच में लिखना होता है? मैम हम ये तो ओनली specify- लाइक नंबर्स लिखते हैं, हम टेक्स्ट देते नहीं आंसर वो। कहाँ से कहाँ लाई करता है? जब हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, आंसर शुड लाई बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? यू हैव सिंगल डिजिट न्यूमेरिकल्स कमिंग ना? मैम डबल डिजिट्स के भी तो होते हैं मैम, केमिस्ट्री में अब आने लग गए हैं तुम्हारे ऐप में, क्योंकि पहले Yes, तक नहीं ma'am. आते थे ना। मैम डबल डिजिट्स के भी थे। इस बार भी थे? यस मैम। इस बार थे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, बट जनरली पहले तक ऐप डेवलप नहीं हुआ था तो 0 से 9 के बीच में रखते थे हम लोग। तो अगर 10 था तो आंसर कैन बी 2, ठीक है। बट अगर डबल डिजिट में आने लग गया है तो ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता था। मैम फिजिक्स और मैथ्स में भी डबल डिजिट में भी थे। बेटा अभी चेंजेस हो गए होंगे, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट। Ma'am, there was another question. Ma'am, the long form of the periodic table has, these were the rows and columns mentioned. So long form is the modern periodic table. यस, So which has 7 horizontal rows and 18 vertical columns. यस मैम, दैट ऑप्शन वाज मार्क्ड इनकरेक्ट इन And the correct answer apparently was given as 8 horizontal rows and 8 vertical columns. दैट इज that Mendeleev periodic table one, I think it was. I guess the Mendeleev's periodic table thing was given over there. But long Okay. form is the modern periodic table, right? ओके ओके, फिर ठीक है। अभी जस्ट गो विद द करेक्शंस एंड वी लुक फॉरवर्ड, क्योंकि बेसिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इतना वो रहता भी नहीं है, बट जो भी आए हैं डाउट्स वी विल क्लैरिफाई। ओके, Yes, ma'am. Okay. चलो अभी मुझे बताओ लास्ट क्लास में कितना हुआ था? Ma'am, we did transition and lanthanide contraction, and that was the final. अच्छा, वी डिड विद दिस थिंग, आई थिंक बहुत ज्यादा वो कर लिया था हम लोगों ने आगे तक। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, इज इट क्लियर Yes, ma'am. एवरीवन? Everyone? Yes, ma'am. Okay, so let's move to the next topic. So next topic deals with your ionization potential, or you can say ionization energy. Okay. So next topic is your, next periodicity is about ionization potential. Okay. Or you can say ionization energy. Ionization energy. Okay, so what is it? Ionization energy मतलब अभी आयन बनाना है तो वाली एनर्जी को बोलेंगे. So what is ionization energy? The energy required to how will you convert into an ion? By removing an electron. So energy required to remove an electron मतलब पहले बारी में एक ही निकालना है. An electron from an atom. ऐसा नहीं है कि कहीं से भी निकालना है. From an isolated atom मतलब एटम अलग होना चाहिए. Isolated atom in gaseous state. In gaseous state. तो देखो इसमें इस लाइन में ये जो हमने ये लिखा ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन एन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन की कैटेगरी में ही आता है. एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लाइन, इसको स्टडी कर लो, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, तो वो देख लो. अगर तुमने पूरी डेफिनेशन में ये पार्ट नहीं लिखा तो योर डेफिनेशन विल बी कंसीडर्ड एज इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट. ठीक है, जो इस पार्ट का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है. सो टेल मी, तुमने टाइप मतलब एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में? एलिमेंट्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में?
Depends solid, liquid or gas. And even if they are solid, liquid and gas, वो किस form में exist करते हैं? combined form. Combined. Yes, combined form में होंगे या फिर free state में होंगे? होगा? होगा? You have already done that part. Yes. हमने ma'am. जब रेडियस पढ़े थे तब भी हमने पढ़ा था ना कि एलिमेंट्स दो अलग-अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Isn't it? Yes, ma'am. Ma'am, could you please repeat what? I am just telling you. ठीक है? See what happens, जैसे हम लोगों के जो भी एलिमेंट्स होते हैं हमने एटॉमिक रेडियस के टाइम पे ही पढ़ा था कि they are found in majorly they are found in two different states. Either they are found in free state. फ्री स्टेट मतलब वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करते हैं, मोनोटॉमिकली एग्जिस्ट करते हैं. ऐसा होता है कि नहीं? किसके लिए पढ़ा था ये? मोनोटॉमिक कौन एग्जिस्ट करते हैं? I mean, inert gases, metals. And inert gases and metals. metals. तो metals अगर हम मोनोटॉमिक की बात करें तो metals होंगे. तो metals will be are solid, liquid or gas? Especially solid. Solid. ठीक है, they will be solid. Solid elements मतलब solid metals का मतलब क्या? They will be closely packed. Yes, ma'am. Now, according to the definition of ionization potential or ionization energy, you need to remove an electron from an atom. ठीक है, from an atom. तो अगर ये closely packed होंगे तो क्या तुम इससे atom isolate कर पाओगे? No, ma'am. No, तो ma'am. इसके लिए क्या करना? isolation of atom किस state से ज्यादा easier होगा? Solid state से या gaseous state से? To isolate an atom, which will be the easier phase? Gaseous. Gaseous state. Yes. तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा टू आइसोलेट एन एटम. जब हमें मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैसे स्टेट में वो एग्जिस्ट कर रहा है. जैसे यहाँ पर जैसे अगर हम सोडियम को ले लें तो सोडियम एट रूम टेम्परेचर विल बी फाउंड एट सॉलिड स्टेट. तो इनिशियली यू विल कन्वर्ट इट इनटू गैसियस स्टेट. व्हाई विल यू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस स्टेट? Why will you isolate the yes. sodium See, it is isolated, but it is not in gaseous state. ठीक है, अकेला मोनोटॉमिकली एग्जिस्ट कर रहा है, आइसोलेटेड तो है लेकिन गैसियस स्टेट में नहीं है. गैसियस स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. कैन यू गेट माय पॉइंट? Yes, ma'am. So the energy required over here in chemistry, generally energy is represented as enthalpy. You will do it later on. एंड उसका सिंबल होता है डेल्टा एच. तो ये जो एनर्जी सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने वाली एनर्जी उसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. हीट का जो सिंबल होता है केमिस्ट्री में वो होता है डेल्टा एच. इज इट फाइन? Yes, ma'am. फिर हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में? अब हमारा एटम आइसोलेट हो चुका है, वो अलग अलग भी है. तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं? नाउ आई कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन इजीली. जस्ट अ सेकेंड. Now it will be easier for me to remove the electron. तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो क्या होती है? आपको हमें गैसियस देना है, ठीक है, आपको हमें आइसोलेट कर करके गैसियस देना है. हम अपने एफर्ट नहीं लगाएंगे आइसोलेट और गैसियस बनाने में. किसी और कोई someone else has to do this work for me and I will only work on removing the electron. तो अगर हमें कोई so this energy required over here is called as ionization energy or ionization enthalpy. If someone tells you कि हमने solid state में लिया था और उसको फिर हमने gaseous में convert किया और electron निकाल दिया, so this definition is not the definition of ionization energy. इसमें से जब तुम heat of sublimation निकाल दोगे then it will become ionization energy. Can you get the difference? Yes, ma'am.
And why are these words important? Ma'am, so heat of sublimation वो heat हो गई ना ma'am, which we provide like to basically convert any substance from solid to gaseous state. Yes, Heat and I which we think provide. sublimation यही होता है ना, convert solid to gaseous. Okay, sublimation तो यही होता है ना बेटा. Yes ma'am, okay. हम सब्लिमेशन हर एलिमेंट में हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? अगर हमने थोड़ा हायर उसमें लगा दिया तो फिर हो सकता है. मैम ऐसा नहीं हो सकता सॉलिड से पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट और फिर गैस में हो. तो बेटा हम टोटल एनर्जी ले रहे हैं ना यहाँ पर. मैम अब तो वो भी पूरे प्रोसेस की जो एनर्जी होगी उससे हम सब्लिमेशन एनर्जी कह रहे हैं. यस. इवन जब तुम कैम्फर की भी बात करते हो तो कैम्फर ऐसा थोड़ी ना होता है कि पहले लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, बट एटलीस्ट क्या होता है, जो 1 एटमॉस्फेयर जनरली जिसपे हम एग्जिस्ट करते हैं, या रूम टेम्परेचर जो हम रूम प्रेशर जिसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं, उस टाइम पर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है 1 प्रेशर पे. उसके लिए वो बहुत प्रेशर वाली बात है. तो लिक्विड फटाफट उसमें कन्वर्ट हो जाता है और हमें दिखता नहीं है उसका लिक्विड स्टेट, इसलिए हम बोल रहे हैं सब्लिमेशन हो गया. बट हर एक एलिमेंट पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है और फिर गैसियस में कन्वर्ट होता है. अब क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली हाई है तो इसका लिक्विड स्टेट ज्यादा देर के लिए स्टेबल होता है और हमें वो दिखता है. बट कैम्फर के लिए हो सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम पड़ रहा हो, बिकॉज इट इज अंडर प्रेशर ऑल्सो ना. प्रेशर इंक्रीजेज यू कैन से बॉइलिंग प्रोसेस ना, ऐसा होता है ना. Yes, ma'am. ओके तो इसकी वजह से वो हमें जो स्टेज है लिक्विफैक्शन वाली वो दिख नहीं रही है, बट ऐसा नहीं कि वहां हो नहीं रही है. Am I clear now? Maybe if you decrease the pressure, you will see the liquefaction of camphor. Okay, ma'am. Okay. Okay, fine. अब दूसरा stage क्या हो सकता है? Sometimes some elements are found in their combined state. Okay. So if अब बताओ इसमें कैसे करोगे? अगर कंबाइंड स्टेट में करना होगा तो कैसे करोगे? Ma'am, I guess we have to We'll have to first, I think, isolate it Yes, then and then provide the energy to like use. gas and then ma'am ionize it. yes, so we will go with combined state. ठीक है. सो कंबाइंड स्टेट में हम लोग वर्क करते हैं. तो कंबाइंड स्टेट में मतलब जैसे कंबाइंड स्टेट में नेम एनी एलिमेंट जो एग्जिस्ट करता हो, नेम एन एलिमेंट व्हिच एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट. CaSO4. बेटा एलिमेंट बोल हम रहे हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन कैसी बातें कर रहे हो तुम? Chlorine. कहाँ हो? फ्लोरीन क्लोरीन यस ब्रोमीन. क्लोरीन. तो नाउ क्लोरीन के साथ पॉजिटिव क्या चीज है? क्लोरीन के साथ पॉजिटिव क्या है अकॉर्डिंग टू आयनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन अगर हम वर्कआउट करें? It's already in gas. गैसियस है. Yes, it is already existing. I think sharing is stopped. Just a minute. Please give me a minute. Where is it? A minute. I am facing some technical thing.
वो नारियल पानी है ये देना एक का is the screen getting shared now because we had some problem? Yes, ma'am. Okay, fine. So the thing is, what I wanted to tell you is, over here, हाँ. So what we were talking about, जो next element होगा, वो क्या करेगा? Next type के जो elements होते हैं, वो कैसे exist करते हैं? They exist in some combined form. Okay, जैसे कि हमने अभी क्लोरीन के बारे में बोला, तो हमारी definition क्या बोल रही थी? Definition ये बोल रही थी कि the element should be already present, मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तब एलिमेंट किस फॉर्म में होना चाहिए? इट शुड बी आइसोलेटेड एंड इट शुड एग्जिस्ट इन गैशियस स्टेट, क्योंकि गैशियस से एक एटम को अलग करना इजी होता है. अभी हमने किया कि सोडियम के साथ क्या प्रॉब्लम आती थी? सोडियम गैशियस स्टेट में नहीं था, सॉलिड स्टेट में था. तो पहले हम उसको गैशियस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसमें जो हमें हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन नो मैम नहीं करेंगे. ठीक है, कि डेफिनेशन ये बोलती है कोई और हमें आइसोलेट करके देगा, हम नहीं करेंगे. ठीक है, मतलब असेंबली लाइन समझते हो? कोई जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग होती है तो आधा काम कोई करता है, आधा काम कोई करता है, तो उसी तरीके से आप हमें आइसोलेट करके दीजिए, हम नहीं करेंगे. ठीक है, और हमारा काम सिर्फ ये है उसको निकालना है. ठीक है, एंड देन देयर आर सम एलिमेंट्स हु एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, मतलब दे एग्जिस्ट डायटोमिकली, इस टाइप से एग्जिस्ट करते हैं. तो डायटोमिक एलिमेंट्स जो होंगे, जैसे कि तुमने बोला हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो इनको क्या करना पड़ेगा? पहले इन्हें आइसोलेट करना पड़ेगा. ये इनके साथ पॉजिटिव चीज क्या है? इनके साथ अच्छी चीज ये है कि ये ऑलरेडी गैशियस है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें ये आइसोलेटेड नहीं है. वो आइसोलेटेड था बट वो गैशियस नहीं था, और ये आइसोलेटेड नहीं है, दे आर कंबाइंड एंड बट दे आर गैशियस. तो अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी कंबाइन कैसे है? मैंने तुम्हें बताया था, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आर कंबाइंड टुगेदर बाय व्हिच फोर्स? बाय व्हिच फोर्स? कोवेलेंट बॉन्ड. मैंने तुमको बताया था बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट हमें तो इसे आइसोलेट करना है. फ्रॉम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आई हैव टू मेक इट व्हाट? I have to convert into हाइड्रोजन atom. एटम. तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और वो जो तोड़ने वाली एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? We call it as, what is it called as? Bond dissociation एनर्जी. तो हमें इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो कि उसके बॉन्ड को तोड़ दे. ठीक है, अब जब तुम बॉन्ड तोड़ोगे तो तुम्हें कितने हाइड्रोजन एटम्स मिलेंगे? When you will break the bond, बट हमने पढ़ा था अभी अभी आयनाइजेशन पोटेंशियल में कि हमें कितने एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहिए? 2 से या 1 से? 1. तो एक तो हमें फ्री में मिल रहा है ना, एक तो फ्री में मिल रहा है. तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? मतलब क्या करना चाहिए? मतलब 2 एटम्स मिल रहे हैं तो हम ये बोलेंगे ना, हमने तो सिर्फ आधा काम किया है, आधा काम तो कोई और कर रहा है. तो हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड? हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड? हम काउंट ओनली हाफ ऑफ इट. व्हाई आई एम सेइंग हाफ ऑफ इट? क्योंकि हमें तो सिर्फ एक एटम की रिक्वायरमेंट. ठीक है, और जब हम इस हाइड्रोजन एटम से, जो कि आइसोलेटेड है और ऑलरेडी गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जब हम इससे अब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, नाउ द एनर्जी विल बी कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी.
Can you follow my point? Can you follow now? So basically the ionization energy is the bond dissociation energy by It is not the bond dissociation energy. वो तुम्हारा काम है, वो तुम करके लाओ. हमारी तो definition यहाँ से start होती है जब तुम हमें isolate करके दोगे. so it's yes ma'am, so after that ठीक है, तो वो आफ्टर वाली बात होती है. अगर नहीं है आइसोलेटेड तो यू डू इट. आई एम नॉट गोइंग टू काउंट इट इन माय एनर्जी. ओके, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन. exist करता है. मैम तो इनमें कोई रिलेशन नहीं होता? नहीं होता भैया, आयनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट है और बॉन्ड डिसोसिएशन डिफरेंट है. मैम हाफ मैम मॉलिक्यूल वैसे ऑफ H2 कैसे एग्जिस्ट करता है? क्या? मैम हाफ मॉलिक्यूल लिखा है H2 का, मैम वो कैसे एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट तो नहीं करेगा, लेकिन मैंने तुम्हें समझाना था ना कि मुझे सिर्फ एक एटम के लिए चाहिए, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड ओनली फॉर वन एटम. ठीक है, तो इसलिए तुम दो कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 हाइड्रोजन एटम लगेंगे, लेकिन मेरे काम में सिर्फ उसकी आधी आएगी, क्योंकि एक एटम तो किसी और ने यूज किया ना, तो उसके उसमें काउंट करो ना, उसका प्रॉफिट काउंट करो. मैं अपने में क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ उसे? क्योंकि मेरी डेफिनेशन तो क्या बोलती है, 2 हाइड्रोजन एटम से निकालने वाली एनर्जी को या 1 हाइड्रोजन एटम से निकालने वाली एनर्जी. What does my definition tell you? one hydrogen. So I will say only I am using half of the energy, na? Because I require only half atom, 1 atom, sorry. yes हमें ma'am. मिल तो 2 रहे हैं ना, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट तो 1 एटम की है ना. तो हमारे को जो एक्स्ट्रा एटम की एनर्जी देनी पड़ी, क्या तुम उसको बोलोगे? मतलब जैसे एक चीज है, कोई चीज पेयर में मिल रही है, ठीक है, और तुम्हें सिर्फ एक की रिक्वायरमेंट, 2 पेन्स मिल रहे हैं, लेकिन तुमको एक की रिक्वायरमेंट है, तो क्या तुम दोनों पेन्स का कॉस्ट पे करोगे? क्या करना चाहोगे? दोनों पेन्स का कॉस्ट पे करना चाहोगे, उससे बार्गेन कर करके एक ही पेन का कॉस्ट लेना चाहोगे? Ma'am, I see. लेना चाहोगे ना, हाफ ही देना चाहोगे ना. Yes ma'am. तो वही किया है हमने. हमें तो 2 एटम्स मिल रहे हैं, बट हमारे जो डेफिनेशन है वो तो एक एटम के लिए है. ठीक है, तो हमने भी बोला कि ठीक है, अगर आप हमें दे रहे हो तो उसका हाफ ही हम एनर्जी का काउंट करेंगे, पूरा नहीं काउंट करेंगे. नाउ इज इट क्लियर? Yes ma'am. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन. सो टेल मी, what will be the factors on which ionization will be dependent? Factors on which ionization potential depends. Ionization potential depends. Tell me, what do you think will be the factors on Ma'am, which? atomic radius. Yes, obviously atomic radius पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, because you know the electrons are loosely bound. So first will be the atomic radius. ठीक है, atomic radius मतलब किस number of orbit से तुम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, number of orbit from which we will remove the electron. So you know, as the number of orbit or as the principal quantum number increases, the effective nuclear charge decreases. We have already done this. Yes ma'am. ठीक है, so it will be easier to remove the electron, it will be difficult to remove the electron. Easier. So it is the value of n is high, it will be easier to remove the electron. Can you follow my point? And if it is easier to remove the electron, the ionization energy will be low or it will be high? Low. Yes, so ionization energy will decrease as the principal quantum number will increase. तो इसीलिए जो metals होते हैं, देखो lithium से electron निकालना मुश्किल है, लेकिन सोडियम पोटेशियम से electron निकालना comparatively easy है. And that is the reason जो भी तुम्हारे lustrous metals होते हैं वो high atomic number के होते हैं, क्योंकि उनमें number of orbit ज्यादा होते हैं, electron को निकलना comparatively easy हो जाता है. देखो gold, silver, platinum, मैंने तुमको कॉइनेज मेटल्स में पढ़ाया ही था, 5th 6th पीरियड में लाई करते हैं कि नहीं लाई करते हैं? Yes ma'am. So all these are lustrous. Why? Because the electron का निकालना comparatively easy हो जाता है. Can you follow? Can you follow till here? Yes ma'am. Coming to the next thing, अगर supposing n constant रहा, मतलब हम जब n constant रखते हैं, if n is same, तो अब बताओ किस पे डिपेंड करेगा?
आयनाइजेशन पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? Ionization potential mainly depends on the distance from the nucleus. So if n is same, then it will depend on what? Z Effective effective. nuclear. Yes, effective nuclear charge. So it will depend on effective. So second factor जिसके ऊपर ionization potential depend करता है, that is called as effective nuclear charge. ठीक है? So now you already know effective nuclear charge अगर high होगा तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन निकालना easy होगा या difficult होगा? Difficult. Difficult. It will be difficult to remove the electron और हमें ज्यादा effort लगाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा energy लगानी पड़ेगी. So what do you think? Ionization energy will increase or decrease? Increase. Increase. Can you follow till here? Yes, ma'am. तो अगर मैं इसको sum up करके लिखूं, so what can I write? I can simply say that ionization potential is indirectly related to atomic radius. पास में रहोगे तो मुश्किल है निकालना और दूर रहोगे तो easy है निकालना. Can I write like this? Yes, ma'am. And it is directly related to, you can say, effective nuclear charge. अगर effective nuclear charge ज़्यादा होगा तो मुश्किल होगी निकालने में और कम होगा तो easily निकल जाए. Is this relation correct? Yes. ठीक है. If I ask you to follow this in the trends in the periodic table, trends in the periodic table, okay, so what do you think will happen if I move from top to bottom or I move from left to right? Ionization potential decreases while going from top to Yes. Why will it decrease? Because there will be an addition of an extra energy level, and addition of extra energy level means means that the n value increases. yes, ionization potential decreases on moving top to bottom. The reason being is there is addition of an extra energy level. Atomic radius जो होता है वो increase कर जाता है. Atomic radius increase करेगा तो Z effective decrease करेगा. So it is easier to remove the electron. Do you agree? Yes, ma'am. Remove the electron. ठीक है? So it is like this. But on moving left to right, what should happen? Ionization potential increases because the Z effective increases. Very good. So ionization potential should increase, but you know this is chemistry, and chemistry cannot exist without, especially inorganic chemistry cannot exist without exceptions. और हम कहाँ गड़बड़ करेंगे और हमें या तो कह सकते हो पूरे चैप्टर में कहाँ फोकस करनी है, कहाँ फोकस करनी है? On exceptions. So generally what is the trend? जो एक normal बच्चा क्या बोलेगा कि on moving left to right हमने पढ़ाई था atomic radius में कि effective nuclear charge increases, अंदर से magnet का force strong आता है, ऐसे करके बताया था तुम्हें. Yes, ma'am. ठीक है. न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, तो डिस्टेंस सेम रह रहा है. सो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट व्हाट हैपेंस इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल शुड इंक्रीज. तुम्हारी बात जेन्युइन है, बट द प्रॉब्लम इज इंक्रीज तो करता है बट नॉट रेगुलरली, नॉट रेगुलरली. ये लाइन ध्यान रखनी है. There is increase because effective nuclear charge also increases on moving left to right. So there is an increase, but this increase is not regular. Now, what do you mean by increase is not regular? That's what I'm going to explain. तो ये जो दो factors थे ionization potential को roughly majorly govern कर रहे थे, ये दोनों factors clear हुए? Yes. Major इन्हीं पे depend करता है, okay? But चुटर पुटर पे किस पे और भी डिपेंड करता है. तो थर्ड फैक्टर देखो. नाउ यू हैव ऑलरेडी डन अर्लियर एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते टाइम देयर इज एन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर कमिंग इन हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स. Yes, ma'am. एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इन हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स. तो इनका फर्क आयनाइजेशन एनर्जी पे भी आ जाता है.
filled and fully filled orbitals. ठीक है, तो इनका जो फर्क होता है वो हमारे आयनाइजेशन पोटेंशियल पे भी आ जाता है, तो वो कैसे आता है, दैट्स व्हाट वी विल डू इट राइट नाउ. ओके, तो कैसे आता है वो देखते हैं. चलो देखते हैं. तो क्या होता है, जैसे कोई भी पीरियड ले लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड पीरियड. ओके, तो सेकंड पीरियड में कौन से एलिमेंट्स होंगे, लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, फिर बोरॉन होगा, फिर कार्बन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर सल्फर होगा, फिर फ्लोरीन होगा. ओके, and now let us write the electronic configuration. So this will be 2s1, this will be 2s2, this will be 2p1, this will be 2p2 and 2p5. Now if I remove one electron from each of the following, okay, so what do you think it will convert into? They will convert into what? If I remove the one electron from this, it will convert into what? 1s2. Same plus. This, if I remove one electron from here, it will convert into what? 2s1. If I remove one electron from here, it will convert it into what? अगर 2p1 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो कहाँ चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, which will be the last subshell? 2s2. 2s2. Yes, 2s2. Okay, then इससे निकाल दे तो this will be 2p2, this will be 2p3 and this will be 2p4. Which process do you think is good? कौन खुशी खुशी करने को तैयार हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन? देखो ये किस में था, 2s1 में था, ये 1s2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई कि नहीं? Yes. Will it readily lose the electron or it will resist losing the electron? And it will resist losing electrons. Beta. readily. Yes, it will readily lose the electron. तो तुम्हें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा या कम एफर्ट? ज्यादा readily lose का मतलब कम effort. कम Yes. एफर्ट, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मतलब तुम निकलना ही चाहते हो, तो मतलब मूवी जाना ही चाहते हो, लेकिन तुमसे कोई पूछ नहीं रहा, कोई पूछ ले तो उठ के तैयार हो जाओगे कि नहीं? तो हमें कम एफर्ट लगाना पड़ेगा कि नहीं? Getting it? Yes, ma'am. Now see over here also. Earlier तुम्हारी जो कॉन्फ़िगरेशन थी, क्या वो हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड में थी? Was it a stable configuration or unstable configuration? Unstable. Unstable. But now after losing an electron, you are converting into fully filled orbital. Tell me. Yes, ma'am. And is it a stable configuration? Yes, ma'am. So again, what will you do? Will you like to lose the electron loosely or with difficulty? Readily lose. Yes, again, you are going to readily lose the electron. Can you follow my point? Can you Yes. follow it? अब मुझे कहीं और भी देखो ऐसा कुछ हो रहा है जो बहुत खुशी खुशी बोलेगा हाँ मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ. Oxygen. I'm off. ऑक्सीजन. क्यों? I'm half filled. Half filled. Half filled to fully filled. Yes. हाफ फिल्ड से फुल्ली फिल्ड अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड में नहीं है, बट इट इज कन्वर्टिंग इनटू हाफ फिल्ड, मींस उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, उसको ज्यादा आराम करने को मिल रहा है. सो अगेन देयर विल बी रेडली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Ma'am, so nitrogen should resist losing the electron, Yes, right? that's what I'm going to do next. Now see, just give me a second, that's what I'll tell you next. Now come over here. So when we are talking about these, so see, earlier it was fully filled configuration and now you are making into half filled configuration. So you are converting from stability to unstable or not? मतलब वो सो रहा है और तुम जबरदस्ती उसको बोल रहे हो नहीं भागो, क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? What do you think? What will be your reaction? Yes, ma'am. Resist. So it will resist loss of electron. Similarly यहाँ देखो, ये half filled था, मतलब stable condition में था, और इसको तुम unstable बना रहे हो. So will it readily lose the electron या फिर resist losing the electron?
Resist. रेजिस्ट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब जिस बच्चे को ये चीजें नहीं पता है वो तो सिंपली क्या बोलेगा, वो बोलेगा ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो उसके हिसाब से एक नए बच्चे के लिए क्या होगा, लिथियम का सबसे कम होगा, फिर किसका हो जाएगा, बेरिलियम का, फिर बोरॉन का, फिर कार्बन का, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। वो ऐसे लिखेगा ऑर्डर, टेल मी। Yes. ma'am. ठीक है, पर एक गलत बट होगा। वी हैव डन इट दैट ऑल्दो दिस इज वैलिड बट दिस इज नॉट रेगुलर। ऐसा जरूरी नहीं है जैसे स्ट्रांगली ऐसे ही चलता चला जाएगा, कुछ एक्सेप्शंस आएंगे। तो अब हम उसको लगाते हैं, तो अब जब हम सही वे में लिखेंगे जो हमें नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, लिथियम तो खुशी खुशी लूज करेगा, लेकिन बेरिलियम क्या खुशी खुशी लूज कर रहा है, No, डू यू ma'am. थिंक? तो बेरिलियम रेजिस्ट करेगा और लिथियम लूज कर देगा, ठीक है। बेरिलियम और बोरॉन में किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, Beryllium. बेरिलियम। Beryllium. बोरॉन। मतलब वैसे देखा जाए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका बढ़ रहा है, Boron. किसका बढ़ रहा है, who has higher effective nuclear charge? Boron. Yes, effective nuclear charge of boron is greater than effective nuclear charge of beryllium। तो एक नॉर्मल बच्चा ये बोलेगा कि हाँ बेरिलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए और इसका ज्यादा होना चाहिए, बट बिकॉज वी नो दैट बेरिलियम हैज फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, है कि नहीं? Yes. ma'am. And for beryllium, if it loses electron, it will convert to fully filled configuration। तो कौन रेजिस्ट करेगा और कौन लूज करेगा, बेरिलियम विल रेजिस्ट एंड बोरॉन विल रेजिस्ट। अगर उसने रेजिस्ट किया तो इसका मतलब है आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज कर जाएगा, हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा या कम एफर्ट हमें में काम? increase sir. एंड यहाँ पर क्या ये इजिली लूज करने को तैयार है, मींस आयनाइजेशन एनर्जी जो एक्चुअल में होनी चाहिए उससे थोड़ी सी कम आएगी या ज्यादा हो जाएगी, कम आएगी। कम हो जाएगी, क्योंकि वो इजिली लूज करने को तैयार खड़ा है। तो उसकी वजह से यहाँ पर एक्सेप्शन आता है, ये ऑर्डर जो है वो गलत हो जाता है। एंड क्या हो जाता है, ये इजिली लूज करने को तैयार है, ये रेजिस्ट कर रहा है, तो हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा, इसमें कम एफर्ट लगाना पड़ा, एंड द ऑर्डर चेंजेस फ्रॉम हेयर टू हेयर। दैट्स व्हाई आई वाज राइटिंग नॉट रेगुलर, क्योंकि ऑर्डर में रिवर्स आ जाता है। कैन यू गेट माई पॉइंट? Yes. अपने पड़ोसी से बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि कार्बन से भी बड़ा हो जाएगा, हल्का सा फर्क आता है, माइनर फर्क, ओके। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑर्डर इफ आई एम राइटिंग, लिथियम के बाद बेरिलियम आना चाहिए, लेकिन इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, चेंजेस आ जाएंगे। so, उसके बाद बोरॉन से निकालना इजी है एंड देन बेरिलियम से निकालना इजी है। ये डिफरेंस क्यों आया, अब रीजन समझा? Yes. कैन यू गेट इट? Yes, कैन यू फॉलो इट नाउ? नाउ सी, कार्बन के साथ क्या ऐसा कुछ एक्सेप्शनल केस चलेगा? पहले भी अनस्टेबल है, अभी भी अनस्टेबल है, लूज कर जाएगा ना आराम से। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर वाला चीज नहीं आएगा ना कार्बन के ऊपर, भी आएगा? There's no change, so ओके, नहीं आएगा। नहीं आएगा। अब नाइट्रोजन पे आएगा, yes, ma'am, it will. तो इट विल यस रेजिस्ट, मैम, रेजिस्ट। और ऑक्सीजन, It will easily lose. yes, तो it will resist, it will easily lose, and तो हमारे पास the second exception आ गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये ऑलरेडी 2p3 है, ये 2p4 है, इट इज ऑलरेडी पहले से ही अच्छा स्टेबल कंडीशन पर है, और उसको तुम इलेक्ट्रॉन निकाल करके अनस्टेबल बना रहे हो, ओके। और ये ऑलरेडी अनस्टेबल है और इसको इलेक्ट्रॉन निकाल करके स्टेबल बना रहे हो, तो व्हाट डू यू थिंक विल हैप्पीली डू एंड व्हिच वन विल रेजिस्ट? Nitrogen will resist and oxygen will happen. Lose electron easily, and this will
resist loss of electron. Okay, now if it will resist loss of electron, मतलब इसका ionization energy हल्का सा increase कर जाएगा और इसका ionization energy हल्का सा decrease कर जाएगा. तो although effective nuclear charge of oxygen is greater than nitrogen, but if you talk about ionization energy, क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? It's the opposite. It's the opposite. Why it's the opposite? Can you follow now? Yes, ma'am. ठीक है, तो वैसे तो हम अगर बोलें तो ऑर्डर में क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, दिस विल आल्सो चेंज, शो अ चेंज. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं, फिर कौन आएगा, नाइट्रोजन आना चाहिए लेकिन चेंज हो गया, एंड देन फ्लोरीन. कैन यू फॉलो इट? Can you follow it? Yes, ma'am. मतलब जो सेकंड पीरियड के जितने एलिमेंट्स होंगे, सॉरी सेकंड ग्रुप के जितने एलिमेंट्स होंगे, उन सब में ये प्रॉब्लम आएगा. ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब में ये प्रॉब्लम आएगा. Yes, ma'am. सिमिलरली ग्रुप 15 के जितने एलिमेंट्स होंगे उनमें भी ये प्रॉब्लम आएगा. ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2, means fully filled configuration. Will they resist the electron giving of electron or will they not? Yes. They will resist. Yes, They'll मतलब resist. ionization energy में हल्का सा increase आ जाएगा सब में. Yes, ma'am. ठीक है. Similarly, if you go with group 15, that is nitrogen family, the electronic configuration is going to be NS2-NP3, again half filled configuration. Don't you think there will be resistance? Yes, ma'am. ठीक है. अब ये रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि हम हमेशा कैरी फॉरवर्ड कर सके. ठीक है, इट इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग कि हमेशा के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सके. बस कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अपने पड़ोसी से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. तो इसकी वजह से किस में आ जाता है, ग्रुप 3. ग्रुप 3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2-NP1. So after loss of electron, it converts into NS2. So इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है. एंड वेयर एज ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2-NP4, जिसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद इट कन्वर्ट्स इनटू NS2-NP3. अगेन आयनाइजेशन पोटेंशियल विल डिक्रीज. कैन यू फॉलो? ऊपर वाली लाइन में वो ग्रुप 13 है ना? कहाँ बेटा, हाँ सॉरी ग्रुप 13 है ये. ठीक है, तो जब भी तुम किसी पीरियड का लिखने बैठोगे, किसी भी पीरियड का लिखने बैठोगे, तुम्हें क्या करना है, ग्रुप 1 का तुमने लिखा, ठीक है, ग्रुप 2 का लिखा, ग्रुप 2 का सिंबल ऐसे ना लग करके क्या लगेगा, ऐसा हो जाएगा. अपने राइट वाले एलिमेंट के साथ तुम्हें एक्सचेंज मार देना है. किसके लिए, ग्रुप 2 के लिए और ग्रुप 15 के लिए. उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल अपने पड़ोसी से कम हो जाएगा. कैन यू गेट इट? Ionization energy of group 2 element will become greater than its padosi, that is group 13, and similarly ionization potential of group 15 element will become greater than that of its padosi, that is group 16. Can you get it? Can you get the exception? बाकी सब पे कोई फर्क नहीं आएगा, बाकी क्योंकि वहां पे हाफ देखो ना, कहाँ फर्क आ रहा था, यहाँ देखो, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, बढ़ तो इसमें भी रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ने डिस्टर्ब कर दिया. फाइन नाउ? यस मैम. Ma'am? यस. Ma'am, in group 15 elements, ma'am, the ionization energy increases, right? यस, Okay, ma'am. because of extra stability of half filled orbitals. Half-filled orbital. Yes, ma'am. Now is it fine? Yes, ma'am. So now supposing if I ask you कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स मैंने तुम्हारे को दिए, जो कि क्या होंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, फास्फोरस, sulfur and chlorine, and I ask you to arrange them in the increasing order of ionization potential, how will you do it? Ideally it should go like this. Yes, ma'am.
बट एक्सेप्शंस कहाँ पर आने हैं, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया. Magnesium is greater than aluminum. Yes, and over here. So instead of writing this symbol will convert like this, and this symbol will convert like this. Can you follow? और अगर पूरा लाइन में लिखने को बोला जाए तो इन दोनों को एक्सचेंज कर दो. ठीक है, राइट वाले एलिमेंट से बस राइट एक ही एक्सचेंज मारना है. ठीक है, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया राइट वाले एलिमेंट से एंड एज इट इज. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. दैट इज द रीजन. अब तुम्हें समझ में आ रहा है. मैंने यहाँ पर जब पहले मैंने तुम्हें बताया था, on moving left to right ionization increases but not regular. We made it right like this. Increases but not regular. So did you get the reason of writing but not regular? Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे हुआ, इन दोनों में ऊपर नीचे हो गया. Can you get it now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, मतलब बीच में So मैम speed ग्रुप break 2 है. और 15 में जो डाउन द ग्रुप वाला होता है वो सेम रहेगा ऑर्डर, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा.
Are we connected? Yes, Yes. ma'am. Okay, fine. Did you get this exception? Second period or 15th period wala? Sorry, second group and 15th group wala. Yes, ma'am. ठीक है? Now, तो ये तुम्हें mistake नहीं करनी है कभी भी when you're talking about ionization potential in a period. ठीक है? वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाएगा. मैम बाकी जो ग्रुप का होता है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर वो सेम रहेगा. उसमें भी एक छोटा सा एक्सेप्शन है जो मैं तुम्हें आगे शेयर करने ही वाली हूँ. ओके, सो विल शेयर दैट एक्सेप्शन आल्सो. तो तुम्हें क्या लगता है कहाँ पर, मतलब देखो बेसिकली तो ये बोल सकते हो आयनाइजेशन पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा था. Ionization potential majorly it was depending on which factor? Atomic radius and effective nuclear charge. Yes. So किस ग्रुप में, मतलब पीरियड का तो मैंने एक्सेप्शन तुम्हें समझा दिया, लेकिन कौन सा ऐसा ग्रुप था जहां एटॉमिक रेडियस में भी एक्सेप्शन आ गया था? वैसे तो ग्रुप Ma'am, 18. 13. ग्रुप 13. तो बस वही यहाँ पर भी प्रॉब्लम आने वाली है अपने पास में भी. क्यों आने वाली है? रीजन इज क्वाइट क्लियर, बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड. Transition contraction and Yes, and lanthanide lanthanide contraction. contraction. ठीक है. So now let us go with the order. So write the पहले तो atomic radius का order लिखो जो होगा. Write out what will be the order of atomic radius for group 13. What do you think it will be? What should be the order of atomic radius for group 13 elements? What do you think it should be? And boron should have the highest one. Boron has the Highest or largest atomic radius. boron has the highest. And boron has the Lowest. lowest. Yes, lowest. Is it fine? And thallium has the highest. Yes, actual में तो होना ऐसा ही चाहिए था. ठीक है, तो we have already done atomic radius. अगर हम लोग पढ़ें exceptions in atomic radius group 13 के लिए, तो हमने पढ़ा था boron, फिर aluminium, then gallium, then indium, and then thallium. These are the elements present. Yes, These ma'am. are the elements present. But क्या होना चाहिए कि gallium के पास effective nuclear charge high है. Okay, but atomic radius of these two are same, approximately same, and or you can say gallium is slightly smaller than aluminium. The reason being is what? ये दोनों equal. Contraction. That is reason being is transition Contraction. Yes, transition contraction. Now check yourself. इनका atomic radius same है. ठीक है, do it yourself, this exercise, do it yourself. Radius of aluminium is approximately related to radius of gallium, but effective nuclear charge of aluminium is lower than effective nuclear charge of gallium. So जब पहले क्या होता है, atomic radius, जो ionization potential होता है वो atomic radius पे ही डिपेंड करता है, बट जब atomic radius वाली कंडीशन फेल हो जाती है तब effective nuclear charge पे डिपेंड करता है. ऐसा ही होता है ना? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो यहाँ पर देखो रेडियस वाली कंडीशन फेल हो गई, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से टेल मी whose ionization potential is going to be greater? Whose ionization potential will be greater? Among aluminium Number of and gallium should be greater. yes. What is the reason for that? Effective. Ionization energy is directly proportional to the Yes. effective. Can you get it? Yes, ma'am. अगर यहीं पर ग्रुप 13 नहीं होता, ग्रुप 2 होता. ग्रुप 2 होता मतलब होता बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर रेडियम, सॉरी बेरियम एंड देन रेडियम. तो अगर हमसे कोई बोलता है आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए अरेंज करो, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहे हैं, तो दिस विल बिकम लाइक दिस. Okay, but group 13 shows exception in the atomic radius, which is carry forwarded in the ionization potential also. So actually it should be like aluminium should be smaller,
smaller and gallium should be more, but it is coming reverse. Can you get this point? Can you Yes. get this point now? Yes, ma'am. ठीक है. Similarly, इंडियम और इसमें हम लोगों ने बोला था कि इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली सेम बन जाता है. What is the reason for this? इस कॉन्ट्रैक्शन को हम लोगों ने कौन सा कॉन्ट्रैक्शन नेम दिया था? lanthanide contraction. लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. मतलब एक तरीके से अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम का जो एटॉमिक रेडियस होता है, I told you to consult the values on your NCERT book. So you'll find they are very nearby. But again, whose effective nuclear charge is very high? Thallium. Yes. So because of effective nuclear charge of thallium being very high, again, the ionization potential of thallium becomes greater than that of indium. मतलब ऐसे बोला जाए कि इन चारों का atomic radius approximately same होता है. So अगर हमसे ionization potential of group 13 elements बोला जाए, बाकी सब में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है, स्पेशली ग्रुप 13 एलिमेंट्स का बोला जाए तो व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर? बोरॉन बीइंग द स्मॉलेस्ट, सबसे डिफिकल्ट है निकालना. फिर किससे निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा? थैलियम से. ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सॉरी, माय मिस्टेक, इट शुड बी TL नॉट TH. माय मिस्टेक. सॉरी, हाँ TL लिख दिया क्या मैंने यहाँ? माय मिस्टेक. थैलियम है ये, थैलियम है यहाँ पे. ठीक है, ओके. सो फिर किससे निकालना मुश्किल हो जाएगा? थैलियम से. कैन यू फॉलो नाउ? कैन यू पीपल फॉलो नाउ? Yes. थैलियम का सिंबल TL ये होता है. हाँ बोलो. TH तो थोरियम का होता है ना, थैलियम को तो TL ही होता है. या पता नहीं मैं कंफ्यूज क्यों हो गई थी. सॉरी. थैलियम, थोरियम तो फिर रेडियो एक्टिव में चला जाएगा ना. TL ही है. मैं पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गई थी. सॉरी, माय मिस्टेक. इट इज TL ओनली. ओके, सो टेल मी किससे मुश्किल हो जाएगा निकालना? थैलियम से. एंड देन किससे मुश्किल हो जाएगा निकालना? गैलियम से. एंड देन एल्यूमिनियम से. एंड देन इंडियम से. सो दिस इज द करेक्टेड ऑर्डर फॉर ग्रुप 13 elements. Can you follow? Can you follow? Yes, ma'am. Yes, ma'am. After boron, it has to be thallium because of its high effective nuclear charge. हम थैलियम गैलियम को भी ओवरकम कर लेगा. Yes, because उसका effective nuclear charge और ज्यादा हो जाएगा. मैंने तुमको बोला था इन सब के रेडियस के डेटास देखना. तो जब तुमने रेडियस के डेटा अगर तुमने देखे होंगे, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद तुमने नहीं देखे हैं, तो you will find them कि गैलियम और इंडियम और थैलियम का जो रेडियस है ना अप्रोक्सीमेटली सेम है. ओके, बट एटॉमिक नंबर ऑफ थैलियम इज 81. इंडियम का शायद 49 में से वो माइनस किया 31 हो गया और ये 13 हो गया. तो टेल मी योरसेल्फ हुज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी हाईएस्ट? थैलियम. Thallium. तो फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका हाईएस्ट होगा इन चारों में? बोलो. आयनाइजेशन पोटेंशियल Thallium. हाईएस्ट किसका आएगा? Thallium. कैन यू गेट इट नाउ? Yes, ma'am. ठीक है. एंड व्हाट इज द फैक्टर रिगार्डिंग दिस? दैट इज योर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. ऑल ठीक है, अभी याद आया? मैम गैलियम और इंडियम का भी रेडियस अप्रोक्सीमेटली. बेटा बट यहाँ पे यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आया था. यस मैम. इंडियम में नहीं आया था, या फिर जितना आना था वो ऑलरेडी गैलियम ने सफर कर लिया है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा था. उसमें एक्सपेंशन भी आ गया था S और P के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. लास्ट क्लास को याद करो. कैन यू गेट इट? मैम तो गैलियम और इंडियम में भी रेडियस सेम ही होगा. अप्रोक्सीमेटली सेम. आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली सेम. बेसिकली तो इनका अप्रोक्सीमेटली सेम होता है और इनका अप्रोक्सीमेटली सेम होता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. इसका हल्का सा ग्रेटर होता है.
go and see the data. I told you to do it in the last class if I can recall. Did I tell you? मतलब बुक में दिया हुआ है, बुक रीड किया था तुमने? यस मैम चेक किया है। हाँ तो उसमें देखो वहां पे सारा इसका रेडियस का डेटा है, वो वाला पेज खोलो। मैम गैलियम का 135 पिकोमीटर लिखा है और इंडियम का 167। हाँ तो किसका 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 फिर से बोलो। गैलियम का मैम 135 पिकोमीटर और हाँ इंडियम का दिया है मैम 167। हाँ, so see they aren't they very nearby? मैम 135 दिया है। किसका 135 for gallium ना? 135 for gallium you are saying? यस मैम। And what about indium 167 हो गया, और thallium का कितना दिया है? 170। 170 ठीक है, but see the number of elements which are rising, 32 elements increase कर रहे हैं। यस मैम। 32 एलिमेंट्स इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इंक्रीज हुआ। यस मैम हुआ। और लेकिन रेडियस में तो कोई इंक्रीज नहीं आया। यस 167 से 170 ही गए, इतने सारे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर गए, 32 एलिमेंट्स के बराबर का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर दिया और रेडियस में कोई इंक्रीज नहीं किया, तो क्या होगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा या इट विल बिकम डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन और नॉट डिफिकल्ट? What do you think? मैम मतलब बढ़ दोनों रहे, रेडियस भी बढ़ रही, मतलब एट अ स्लो रेट। इतना नहीं बढ़ा ना रेडियस हाई भाई, रेट से बढ़ रहा है। वैसे देखो तुम जरा एल्यूमिनियम और उसमें देखो, मतलब यहाँ देखो ग्रुप 2 का भी लिखे होंगे, ग्रुप 2 के रेडियस देखो लिखे होंगे, कितने लिखे हुए हैं? यस मैम। ये मैंने लास्ट क्लास में भी तुमको बताया था कि तुम चेक कंपेयर करना, तो अगर इसका 40 आ रहा होगा तो इसका 80 होगा, इसका 120 होगा, मैं जैसे एक रफ वैल्यूज ले रही हूँ, ठीक है? इसका 200 होगा, इसका चेक करोगे तो समवेयर अराउंड 400 हो जाएगा। तो यू कैन सी द इंक्रीज इज रेगुलर एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी लाइक दैट ओनली, क्योंकि द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन द s ऑर्बिट एंड s ऑर्बिट गिव्स यू मैक्सिमम शील्डिंग, याद करो। यस मैम। इसकी वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं, रेडियस में भी फर्क नहीं पड़ा, बट यहाँ पर क्योंकि डी में पहली बार एंट्री मारता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखो 32 इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन रेडियस में कोई इंक्रीज ही नहीं आ रहा। तो विच इज गोइंग टू बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर, एटॉमिक रेडियस और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक रेडियस और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इसीलिए तो बोला। अब समझा प्रॉब्लम? यस तो मैम मतलब बढ़ेंगे दोनों, बट रेडियस एट अ स्लो रेट एंड न्यूक्लियर चार्ज अरे एट तो अ तुम हाई खुद रेट। कंपेयर कर लो ना बेटा, 31 से तुम 81 गए, 50 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दिया, और रेडियस में सिर्फ 35 पिकोमीटर का इंक्रीज दे रहे हो, तो किसका, हु इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर? देयर वर टू न्यूक्लियर डिटरमाइनिंग चार्ज। फैक्टर। जनरली क्या होता है, एटॉमिक रेडियस का ज्यादा प्रिविलेज होता है एज कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन यहाँ एटॉमिक रेडियस इंक्रीज शो ही नहीं कर रहा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई इंक्रीज कर रहा है, तो हु विल बिकम द डिटरमाइनिंग फैक्टर? Effective nuclear charge. जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो अब देख के बता दो किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? Thallium's effective nuclear. Yes, now can you follow this? Yes, ma'am. Now is it clear? Yes, ma'am. Shall we move ahead? Yes, ma'am. और बाकी में किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वहां पर ये कॉन्ट्रैक्शन वाली चीजें नहीं आती हैं। ग्रुप 14 की अगर हम बात करें तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके? Yes, ma'am. ठीक है, सिर्फ यहीं पर प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी, अब रीजन समझ में आया? Yes, ma'am. मैम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने का मैम कोई फॉर्मूला होता है क्या? अभी तो नहीं है, जो होगा फिर मैं लास्ट में बताऊं, ठीक है? जो तुम्हें बताया था बस अभी वही है। यस मैं मॉड्यूल देख रहा था, उसमें लिखा था। बेटा मॉड्यूल में बारी बारी बोला है कि बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, हमें वो पढ़ना है जो हमारे काम की, अदरवाइज गूगल पढ़ा हुआ है, यू कैन गो फॉर इट, बट बिकॉज आई एम इन अ कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम फ्रेम, मुझे सिलेबस स्कूल के हिसाब से भी फिनिश करना है,
और तुम्हें इतना करा के देना है कि तुम्हारे 90% क्वेश्चंस हो जाए, ठीक है। आई एम नॉट एमिंग फॉर 100%, आई वांट 90% क्वेश्चंस हो जाए, डिसेंट रैंक के लायक हो जाए। तो उसके लिए मुझे सिलेबस को तुम्हारी बुक्स में, तुम्हारी मॉड्यूल में, मतलब एनसीईआरटी से तो बियॉन्ड पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा गूगल पढ़ा देंगे, ठीक है, बिकॉज वी हैव टाइम फ्रेम टू कंप्लीट अ चैप्टर। Anyways, you told the formula for Z effective as number of protons upon number Yeah, that I also told you that is valid for only same type of species and isoelectronic species. तो वो यहाँ पे वो formula काम नहीं कर पाएगा Yes, ma'am. because they are different and they are not isoelectronic. तो बेटा clear हुई बात? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट मच। सो अब यही ग्रुप 13 वाली जो चीज है ना, वो ग्रुप 14 में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है? आयनेशन पोटेंशियल ऑफ ग्रुप 14, क्योंकि यही दो एक्सेप्शंस बनेंगे तुम्हारे अलोंग द ग्रुप पीरियड का। जो हर जगह एक्सेप्शन बनेगा वो मैंने तुम्हें बता दिया। तो अब देखो क्या होता है, कार्बन, सिलिका, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ठीक है। तो वैसे अगर आइडियली देखें तो यहाँ पर सिलिका और जर्मेनियम के बीच में आना चाहिए ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, जैसे एल्यूमिनियम और गैलियम में आया, यहाँ पे आना चाहिए ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? Yes, ma'am. और यहाँ पे आना चाहिए लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? डू यू एग्री? Yes, ma'am. ठीक है, बट क्या हो जाता है, यहाँ जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है वो निग्लेजिबल होता है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंट्री मार चुका है? वो ऑलरेडी पी सबशेल में एंट्री मार चुका है, विच हैज सफिशिएंट शील्डिंग इफेक्ट। तो जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है वो निग्लेजिबल रहता है। और एटॉमिक रेडियस की बात करें तो क्या होता है, सिलिका और जर्मेनियम में एटॉमिक रेडियस इसका ही हाई रहता है। कैन यू फॉलो माय पॉइंट? आंसर जनरल ऑर्डर चलता है ना? यस, ठीक है। फिर जर्मेनियम और टिन की बात करोगे तो वो तो वैसे भी जैसे गैलियम और इंडियम में भी बढ़ गया था। फिर लेड की बात करोगे तो यहाँ पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए, जिसमें होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस। बट यहाँ पर भी एटॉमिक रेडियस की बात करोगे तो इसका ही हाई आता है, क्योंकि फिर से इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंट्री मार चुका होता है और शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। तो एटॉमिक रेडियस इसका ही हाई आता है, हाई आता है। बट अप्रोक्सीमेटली इफ आई से टिन एंड लेड का जो रेडियस होता है वो फिर से अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, नॉट एग्जैक्टली सेम बट अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाता है, ठीक है। सो इफ आई आस्क यू द आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर फॉर दिस केस, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द ऑर्डर? यूज योर ब्रेन एंड टेल मी व्हाट। कार्बन, देन सिलिकॉन, जर्मेनियम। यस, कार्बन का सबसे हाईएस्ट होगा, देन सिलिका का होगा, देन जर्मेनियम का होगा, देन टिन का होगा, एंड देन मैम लेड। yes, tin and lead। जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होगा वो यही बोलेगा, बट आई एम टेलिंग यू दैट द एटॉमिक रेडियस ऑफ tin and lead is approximately same, but lead has higher effective nuclear charge। So what will a student like you will do? What will be the order now? Lead has lower, It has to come with lead has greater. Yes, the order changes like this, okay? It becomes lead has higher and tin has lower, but it is a very slight change, मतलब approximately same होता है, कह सकते हो very slight change occurs। Can you get the exception part? Again, what is the reason for this? The lanthanide contraction becomes the reason for this। थोड़ा सा लैंथेनाइड, क्योंकि देखो ट्रांजिशन में तो 18 इलेक्ट्रॉन्स का फर्क पड़ता है, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स का फर्क पड़ जाता है, जिसकी वजह से ग्रुप 13 में तो इसका इफेक्ट दिखता ही दिखता है। देखो ग्रुप 13 में लैंथेनाइड का इफेक्ट दिखा ही दिखा, अलोंग विद दैट इसका जो इफेक्ट है वो ग्रुप 14 तक भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मैम तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट इज ग्रेटर देन लाइक ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ऑब्वियसली 32 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है and there is no shielding coming, don't you think it will be greater? पी की शील्डिंग नहीं है, पी की शील्डिंग इसके डी और एफ की शील्डिंग के सामने उतनी ज्यादा काम नहीं कर पा रही है, तभी तो ये प्रॉब्लम आई। यहाँ पर उसने कंपनसेट कर दिया, यहाँ नहीं कर पा रहा है, तभी तो प्रॉब्लम आ रही है। तभी तो मैं तुम्हें एक्सेप्शन में पढ़ा के टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अगर नहीं आ रही होती तो मैं आगे मूव कर चुकी होती ना। Why am I giving time? Because I know it is required yes over I'm there. understood।
ओके ना, अगर मुझसे कोई ग्रुप 15 का बोलता है तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी की शील्डिंग जो है वो इफेक्टिवली आने लग गई, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, देन क्या, एंटीमनी, सॉरी आर्सेनिक, देन एंटीमनी एंड देन बिस्मुथ। यहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जैसे एटॉमिक रेडियस की प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ आई थी, ग्रुप 13 पर आई थी, ठीक है। फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल की प्रॉब्लम कहाँ हुई, ग्रुप 14 तक भी कैरी फॉरवर्ड हो गई, ओके। बट ग्रुप बाकी प्रॉब्लम जो है कहीं और नहीं आ रही है, वो नॉर्मल बिहेवियर फॉलो कर। कैन यू गेट इट? मैम जो खाली ग्रुप 13 एंड 14 में एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। Yes, that's why I'm telling you ना, I'm giving time. I'm not discussing about group 1, 2 and other thing, neither of 17 and anything, है ना। जहाँ एक्सेप्शन है वही तो डिस्कस करेंगे, बाकी का तो तुम समझ ही चुके हो ना। Can you get it now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. Okay, now see, when you take out the first electron from an isolated gaseous atom, then you call it as the first ionization potential. Okay, there are successive ionization potential, because ऐसा तो है नहीं कि कुछ elements में तो tendency होती है ना, they can lose more than one electron. So if you take out one electron, so I'm writing about successive ionization potential. ठीक है, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में क्या है कि व्हेन यू टेक आउट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये गैसियस है, आइसोलेटेड है, तो जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो इट गॉट कन्वर्टेड इनटू M पॉजिटिव, एंड M पॉजिटिव की वजह से जब हम निकालते तो हम इसको कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाला था, सो इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट आयनाइजेशन potential, and you can represent this thing as IP1. तो अभी तक मैंने तुमको जितना पढ़ाया है, that was related to which ionization potential? It was, we were taking out only one First electron. ionization potential. Now if you happen to take out the second electron, मतलब पहले से निकला हुआ था एक और एक और निकाल दिया, this will be called as what? Potential. This is called as Second ionization. ionization potential. So it will be IP32 and so on. अब फिर से तुमने और निकाल लिए, so this will become the third ionization potential. IP3, and you can carry forward fourth, fifth and so on. Can you follow? मैम इसको आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे ना, अरे ionization IP2 एंड IP3 potential, को। अगर तुमने आयनाइजेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है तो वो हम बोलेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। एनर्जी के दो फॉर्म्स होते हैं ना, एटॉमिक रेडियस में पढ़ा था ना, दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस मैम। Yes. तो अगर तुमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज किया तो वो क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल होता है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल, व्हाट इज यस मैम। तो बस वो पोटेंशियल हो गया, ठीक है। और अगर, क्योंकि हम लोग जनरली आयनाइजेशन पोटेंशियल तो मैंने तुमको उसमें भी सिखाया था ना, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन सा यूनिट हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते थे आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए? अरे कम ऑन, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक स्ट्रक्चर भूल गए क्या? No. एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड, दिस इज नथिंग बट पॉजिटिव ऑफ टोटल एनर्जी। Yes, ma'am. We use joules, ma'am. Electron. अच्छा, जूल्स यूज करते थे, टोटल एनर्जी किसमें, मतलब फ्रीक्वेंटली यूज्ड एनर्जी कौन सी होती थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Electron volt. हाँ, तो फिर वोल्ट आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. तो ज्यादातर आयनाइजेशन एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग? Electron volts.
वोल्ट जहां पर भी आता है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। Potential. फिजिक्स में पढ़ा होगा, 10th में करंट होता है तो शायद V इज इक्वल टू IR पढ़ा होगा। Yes. Yes, ma'am. पोटेंशियल नहीं पढ़ा था तब? Ma'am पढ़ा था। ठीक है, तो बस तो यहाँ पर भी इसलिए मैंने पोटेंशियल लिखा है ज्यादातर। ठीक है, इफ यू आर Ma'am. एक्सप्रेस, हाँ मैम लाइक आयनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन के हिसाब से आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी को कहेंगे ना आयनाइजेशन हाँ, तो एनर्जी। हाइड्रोजन आइसोलेटेड ही तो होता था। कब कंबाइंड फॉर्म में दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने तुमको? मैम एटॉमिक सो स्ट्रक्चर, मैम IP2 में जो है मैम ये तो आयन है। अरे तो इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड तो पहले ही कर रखा है ना, एटम और आयन। आइसोलेटेड होना चाहिए, वो हमारी प्रायोरिटी, और गैसियस में होना ओके चाहिए। ओके ठीक है, मैम। कैन यू गेट इट नाउ? यस मैम। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। सो अभी मतलब इस वे में हो गया, तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब यू हैव ऑलरेडी डन इन आयनिक रेडियस, मैंने तुमको ये चीज कराई दी थी, तो अब आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी के लिए तुम खुद ही बता दो क्या था। M का रेडियस किसका ज्यादा हो जाता था? M पॉजिटिव, M+2, M+3, किसका ज्यादा कम होता था? मैम पेरेंट एटम हैज ग्रेटर एटॉमिक रेडियस एज कंपेयर्ड टू आयन। So if I talk about ionization potential, so what do you think? It will be lower as compared to IP2, as compared to IP3, as compared to IP4 and so on, Yes, ma'am. because they will convert into ion. If they convert into ion, the ions have smaller atomic radius. That means effective nuclear charge is increasing. Can you get it? Yes, ma'am. So if effective nuclear charge increases, so फिर ionization potential will also increase ना? यस मैम। So successively it increases. Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है, बट इसमें भी तुम्हारा वो वाला फैक्टर काम करेगा। कौन सा फैक्टर? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ओके, इसमें भी वो फैक्टर काम करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन कौन आता है? सिलिकॉन, Silicon. देन फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, if I talk about first ionization potential, जिसका मैंने तुम्हें already सिखा दिया है, if I talk about first ionization potential, I told you what is going to be the order. Sodium, magnesium becomes greater than aluminium, then it is going to be silica, then phosphorus becomes greater than sulfur due to half-filled configuration, and then it is chlorine. This was the correct order. Yes, ma'am. यस मैम। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये हो गई। अब इसकी क्या हो गई? इसकी हो गई 3s1, इसकी क्या हो गई? 3s2। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? न्यू कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जब हमने इनको आयंस में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब इनमें सब में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इसकी क्या हो जाएगी? 3p1, इसकी क्या हो जाएगी? 3p2, इसकी क्या हो जाएगी? 3p3, and इसकी will be 3p4. Now if you take out the electron, who is going to resist? Who is going sodium. to resist? Obviously it will resist because it तो fully filled में convert हो गया. Don't you think now aluminium will resist instead of magnesium? यस मैम। पहले magnesium करता था because इसकी 3s2 थी, but अब ये रेजिस्ट करेगा और ये इजीली लूज कर मैम देगा। सल्फर आल्सो। It सल्फर। will lose easily. Why it will lose easily? Because it will convert into 2p6. Inert gas configuration पे जा रहा है. Can you get the difference? Now instead of phosphorus, who is going to resist? Sulfur. Yes. And who will lose easily? Ma'am, magnesium. And क्लोरीन। silicon will lose easily because it will convert into fully filled configuration. So now if I क्लोरीन want आल्सो। what?
मैम वोंट क्लोरीन वो आल्सो तो क्लोरीन तो वैसे भी लूज कर ही देगा, हाँ क्लोरीन आल्सो इट विल आल्सो लूज इजीली। ओके ना, तो अपने राइट वाले पार्टनर से एक्सचेंज करना होता है, ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया है। तो अब क्या होगा, सबसे हाईएस्ट किसकी होने वाली है, सोडियम की, क्योंकि उसका तो ऑर्बिट ही कम हो गया है। कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. फिर मैग्नीशियम किस में रेजिस्टेंस आया, एल्यूमिनियम में। किससे एक्सचेंज करना होता है, राइट वाले से। तो राइट में कौन आया, सिलिका। तो ऑर्डर लिखने को आएगा अगर सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का, तो क्या लिखोगे, मैग्नीशियम का लोएस्ट होने वाला है, फिर उसके बाद ऑर्डर में क्या आएगा, और सोडियम का सबसे हाईएस्ट होने वाला है। ऑर्डर समझ में आया क्यों? यस मैम। ठीक है, अभी यहाँ एल्यूमिनियम और सिलिका में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएंगी पोजीशन। यस मैम। ठीक है, देन किसमें प्रॉब्लम आएगी, फास्फोरस एज इट इज रहेगा, क्लोरीन और सल्फर चेंज हो जाएंगे। किससे एक्सचेंज करना होता है, अपने राइट साइड वाले मेंबर से। क्यों एक्सचेंज किया पोजीशन को, क्लियर हुआ रीजन? Yes, ma'am. ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा बहुत ज्यादा आता है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, ये इसका आंसर तुम मुझे लिख के दिखाओगे इन द नेक्स्ट क्लास। सो राइट द क्वेश्चन एज होमवर्क, राइट द क्वेश्चन एज होमवर्क। The question is, the first ionization potential or first ionization energy of magnesium is greater than, magnesium is greater than aluminium, but second ionization energy of magnesium becomes lower than aluminium. Now you have to give me the reason. Give reason. You have to write it in your own words. In the next class, I think it will be an offline class, I will check with your notebook. Ma'am, can you go to the last page once? First, copy the homework question. First, copy the question. Are you done, everyone? Yes, ma'am. Yes. Okay. So, moving to the last slide as you were telling me to. मैम सोडियम आयनाइजेशन पोटेंशियल इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो सबको Obviously, बेटा तुम सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन, और वो भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ज्यादा नहीं हो जाएगा। एक तो ऑर्बिट डिक्रीज कर गया, यहाँ सब में थर्ड से निकाल रहे हो, सेम ऑर्बिट। कैन यू गेट इट? यस मैम। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो वैसे भी मुश्किल हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं उसके। क्लियर हुआ रीजन? यस मैम। You got your homework question as well? Yes, ma'am. So shall we end it here for today? Okay, जी ma'am. मैम। Yes. मैम ये पीरियोडिक टेबल है, उसमें कौन कौन से ग्रुप्स और पीएच इंपॉर्टेंट है जो लर्न करने की जरूरत है? जितनी पढ़ा रहे हैं उतनी तो करनी ही करनी है, ठीक है। ऑब्वियसली हम प्रायोरिटी में तो वही चीजें कराते हैं ना जिससे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, वो तो जो करा रहे हैं वो तो करनी ही करनी है। हाँ बोलो। अब मैंने एक जगह पढ़ा था कि मैम एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, तो मैम ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ठीक से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, मतलब जो पीरियड होता है उसी के वही एस एलिमेंट आता है और यही वही पी आता है, तो इसलिए वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फोर्थ पीरियड तो 4s 4p आ रहा है, तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस मैम। इसलिए रिप्रेजेंट। ओके ओके मैम।